Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 29 July. I'm sure children you all are doing good and you all are healthy, happy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves children and follow all the safety precautions, follow all the COVID protocols and keep yourself protected. We are doing lesson number 4 in our main course book, and the name of the lesson, as you all can see on the board, is My School. In this lesson, there is a girl called Yavi. She has told about her school. She has gone to a new school. वो एक नए स्कूल में गई है. तो she is asking others कि would you like to know about my school? तो ऑफ कोर्स किसी भी नई चीज़ के बारे में हम सब जानना चाहते हैं. तो शी इज टेलिंग अस अबाउट हर न्यू स्कूल. ओके, वी हैव डन द रीडिंग पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया. वी हैव डन द spell well words also. We have done word meanings also. Okay, now we have started with the exercises. We completed comprehension exercises, and in comprehension exercises we did write yes or no. That means if the sentence is correct, तब हमने क्या लिखा? We have written yes, and if the sentence is not correct, then we have written no. It is like true or false. ठीक है? Now next was some information about your school. That is name of your school. How many children are there in your class? Name of your teacher and name of your partner. ये हमने कर लिया था. And then we started with grammar exercises. ठीक है, फिर हमने grammar exercises start किया. In this lesson, while teaching, मैंने बताया था, इसमें हमने देखा जब हम रीडिंग कर रहे थे कि some words were written with green color. Rest of the words are printed with black color. Some words are written with green color. Why green color? So these words, that means these words are something different from others. अगर ये वर्ड्स को ग्रीन कलर से प्रिंट किया हुआ है, दैट मीन्स कि ये वर्ड्स बाकी वर्ड से कुछ अलग है ना. कुछ बाकी वर्ड से ये वर्ड्स अलग है, तभी ये ग्रीन कलर से प्रिंट किया हुआ है. तो हमने सारे वर्ड्स नोट डाउन किए थे, एंड नोट डाउन करने पे वी फाउंड दैट देयर आर 8 ऑफ दीज. इस तरह के जो वर्ड्स है वो टोटल लेसन में मिला करके 8 है. ऑफ कोर्स some words are repeated also. Okay, so we are talking about these words in grammar exercises. Comprehension, as I have told you so many times, हर lesson में मैं बताती हूँ कि comprehension exercises are to check your reading and understanding of the lesson. Comprehension based exercises का मतलब है आपकी reading और जो understanding of the lesson है, lesson को आपने कितना समझा. रीडिंग पार्ट को चेक करने के लिए एंड लेसन की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेज होती हैं. एंड ग्रामर एक्सरसाइज में हम इन ईच लेसन वी टॉक अबाउट सम डिफरेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर. ऑफ कोर्स बहुत शॉर्ट में करते हैं. अभी इसी टॉपिक को जब हम ग्रामर में पढ़ेंगे, देन वी विल लर्न अबाउट दिस टॉपिक इन मच डिटेल. बट अभी तो मैं इन वर्ड्स को क्या कहते हैं, what is the use of these words, वो मैंने बताया है, ऑलरेडी स्टार्ट किया था मैंने. ओके, सो वी आर गोइंग टू डू ग्रामरली. GRAMMAR, ग्रामर. GLEE, ग्ली. ओके, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस. ये मैंने स्टार्ट कर दिया था. तो इस लेसन में हमने नोट किया कि the words which are written in different color, they are we, it, he, she, his, her and they and I. Okay, so in words को कहते हैं, these words are known as pronouns. Okay,
Nouns are the naming words and these words are known as pronouns. These are the words which are used in place of nouns. इन प्लेस ऑफ नाउन्स का मतलब ये है कि हम नाउन्स के प्लेस पे इन वर्ड्स को कब यूज करते हैं, जब हमें किसी भी नेमिंग वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना होता है. ओके, व्हेन द सेम वर्ड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, अगर हमें किसी वर्ड को बार बार रिपीट करना होता है तो इट डज नॉट साउंड वेरी गुड. एक ही पैराग्राफ में सेम नेम बार बार आ रहा है तो सुनने में वो बहुत अच्छा नहीं लगता है. सो व्हाट डू? वी रिप्लेस दीज वर्ड्स विथ प्रोनाउंस. फर्स्ट टाइम तो हमने ये वर्ड लिखा, फर्स्ट टाइम तो हमें लिखना है, एंड आफ्टर दैट वी रिप्लेस दीज वर्ड्स विथ अ सुटेबल प्रोनाउन. उसकी जगह जो भी प्रोनाउन यूज होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम उसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं. So these words are known as pronouns. These are just some of the pronouns, बहुत जो simple वाले हैं, which we use in our day to day life. ठीक है, तो first paragraph हमने कर लिया था. I'm not going to write it. I will just read the paragraph. इसमें हमें क्या करना है? In this exercise, we have to circle the right words to make correct sentences. ये मैं question तो लिखूंगी. Circle, CIRCLE, circle the RIGHT, write words to make correct, SENTENCES. Circle the right words to make the correct sentences. इसमें first paragraph was, so Grammarly children turn to page number 35. ठीक है, page number 35. This is the page number 35 in your English course book. Okay. Did you notice these words? He, she, it, his, her, we and they in the story My School? These words are used instead of repeating the naming words. ठीक है, रिपीट करना मतलब दोहराना किसी चीज को. तो नेमिंग वर्ड्स को बार बार रिपीट करने के बजाय हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं. जैसे लेसन में भी आपने देखा कि माई क्लासरूम इज पेंटेड येलो, इट इज वेरी ब्राइट एंड ब्यूटिफुल. अभी माई क्लासरूम इज पेंटेड येलो, माई क्लासरूम इज वेरी बिग, माई क्लासरूम इज वेरी ब्राइट एंड ब्यूटिफुल. सो बार बार माई क्लासरूम सुनने में अच्छा नहीं लगता है. ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मिस्टेक नहीं है, बट इट डज नॉट साउंड गुड. जो भी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं या सुनते हैं या लिखते हैं तो वो पढ़ने में भी अच्छा लगना चाहिए ना. सो फर्स्ट टाइम हमने बोला कि माई क्लासरूम इज पेंटेड येलो. आफ्टर दैट वी हैव यूज्ड इट. It is very bright and beautiful. It is very big. Okay. So he is used for all the male naming words. Of course singular. He, she and it. These are used for singular. ठीक है. जो यहाँ पे जितने भी हमने words पढ़े हैं अभी, यहाँ पे हमने he, she, it, his, her, they, हमने वी भी पढ़ा है. ठीक है ना, हमने वी भी तो पढ़ा ना. वी आर 20 चिल्ड्रन. ठीक है, वी आर 20 चिल्ड्रन. और हमने आई भी पढ़ा है. आई लाइक टू स्विम. अच्छा नहीं, आई लाइक टू स्विम. ऑफ कोर्स यस, आई इज ऑल्सो अ प्रोनाउन. ठीक है ना, आई भी तो प्रोनाउन है बिकॉज आई इज यूज फॉर माई सेल्फ, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. सो ही, शी एंड इट, ये जो है ये किसके लिए यूज होते हैं? सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स. ये होते हैं सिंगुलर, SINGULAR, फॉर सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स. इफ इट इज अ मेल, वन मेल, अ बॉय, फादर, एनी मैन, किसी वन मेल के लिए जब हम प्रोनाउन हमें यूज करना है तो वी यूज ही. अगर फीमेल के लिए हमें यूज करना है तो वी यूज शी. एंड फॉर एवरीथिंग एल्स, फॉर रेस्ट एवरीथिंग एल्स, वेदर इट इज एनी thing, any animal, any bird, any plant, anything,
ठीक है, मेल एंड फीमेल नेमिंग वर्ड के अलावा बाकी सबके लिए हम इट यूज करते हैं। कभी कभी हम जैसे एनिमल्स के लिए भी, जैसे एनिमल्स के भी ऑफ कोर्स मेल एंड फीमेल नेमिंग वर्ड्स आर देयर, मैंने अभी अपने पिछले लेसन में पढ़ा था। बट नॉर्मली व्हेन वी नॉर्मली यूज इट फॉर देम, हम उनके लिए भी इट यूज करते हैं। कभी कभी ही या शी भी यूज करते हैं, बट नॉर्मली वी यूज इट फॉर देम। ओके, दे एंड वी जैसे हम जब अपने बारे में बात करते हैं तो देन आई से आई। ठीक है, मैं अगर मैं सिर्फ अपने लिए बोल रही हूं तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी आई। बट मेरे साथ अगर और भी लोग हैं, अगर और भी कोई है, तब हम क्या बोलते हैं, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं मैं जाऊंगी या हम जाएंगे। मैं मतलब मैं अकेले और हम मतलब हम और भी लोग हैं। ठीक है, तो इन इंग्लिश इट इज आई एंड वी। अगर मैं बोल रही हूं तो आई और वी मतलब हम। ओके, सो आई एंड वी दैट इज प्लूरल। I and we is used for plural, first person। जैसे मैंने बताया है कि first person मतलब जब हम बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो I am the first person and you are the second person, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रही हूँ। क्लास भी जब मैं लेती हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ बिकॉज आई एम टीचिंग। जब मैं पढ़ा रही हूँ आपको तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आई एम टीचिंग एंड आई एम टीचिंग यू, यू ऑल आर द सेकेंड पर्सन। ठीक है, when we talk about someone who is not there, who is not present, किसी और के लिए जब हम बात करते हैं जो कि वहां पे प्रेजेंट नहीं है, then we use he or she। ठीक है, कोई अगर एब्सेंट आज क्लास में, इफ आई से अंश इज एब्सेंट टुडे, तो अगर हम अंश के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, ही। अंश, आई कैन नॉट सी अंश इन द लिस्ट, he is absent today because he is not present, वो वहां पे है नहीं। तो जब हम किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात करते हैं who is not there, any person or anything, जब वो चीज वहां पे नहीं है तो उसके लिए हम he, she और it यूज करते हैं। दैट इज थर्ड पर्सन। why थर्ड पर्सन? बिकॉज he, she और it is not there। ठीक है ना, सो रिमेंबर दिस। जब हम अपने बारे में बात करते हैं देन वी से आई, एंड जब हमारे साथ कोई और भी होता है व्हेन इट इज प्लूरल देन वी यूज वी। सेकेंड पर्सन के लिए, सिंगुलर के लिए भी हम यू यूज करते हैं एंड प्लूरल के लिए भी यू यूज करते हैं। इफ आई टॉक टू अ सिंगल चाइल्ड देन ऑल्सो आई विल से यू, एंड इफ आई टॉक टू द एंटायर क्लास देन ऑल्सो आई विल से यू। ठीक है, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही और शी और इट, एंड फॉर प्लूरल वी यूज दे। ठीक है, राज एंड रिया आर एब्सेंट टुडे, दे हैव नॉट कम टुडे। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम ही, शी और इट यूज करते हैं, एंड फॉर थर्ड पर्सन प्लूरल वी यूज दे। ओके, सो रिमेंबर दिस चिल्ड्रन। अच्छा, अभी इसको मैं इरेज करूं। अभी फर्स्ट पैराग्राफ वी हैव ऑलरेडी डन, वी विल स्टार्ट विद सेकेंड पैराग्राफ नाउ। ओके, फर्स्ट वाज रोहन इज नितिन्स फ्रेंड, she or he is 6 years old, he or she likes to play football, he is wearing his or her favorite shirt and he or it is blue in color। we have done this paragraph। wherever we use he, जहां कहीं भी हम he यूज करते हैं उसके साथ his and her, these are also pronouns। his और her भी pronoun है, his मतलब उसका। ठीक है, रोहन इज नितिन्स फ्रेंड, रोहन नितिन का फ्रेंड है। ही इज 6 years old, वो 6 years old है। ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, उसको फुटबॉल खेलना पसंद है। ही इज वेयरिंग हिज, वो उसने अपनी, अपना या अपनी जैसे हम जब बोलते हैं तो उसने अपनी फेवरेट शर्ट पहनी है। तो ही के साथ वी यूज हिज एंड शी के साथ वी यूज हर। ओके, now I will start with Mona, second paragraph from here। Mona is M-O-N-A, Mona is R-O-H-A-N-S, Rohan's B-A-B-Y, baby, S-I-S-T-E-R, sister। Mona is Rohan's baby sister। She oblique he
has SHORT, short, BLACK, black, HAIR, hair. She or he has a toy cat. She oblique he has a TOY, toy cat. We or it is gray, NCOLOUR, color. ठीक है. Now again we have to encircle the correct word. अभी इसमें मोना इज रोहन्स बेबी सिस्टर. बेबी सिस्टर मतलब छोटे सिस्टर. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोना. यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट मोना. ठीक है. तो अभी मोना क्या है? मोना इज अ गर्ल. ठीक है. मोना क्या है? मोना एक गर्ल है. ओके. तो मोना के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? वी विल यूज ही और शी. मोना के लिए क्या यूज करेंगे? वी विल यूज शी बिकॉज मोना इज अ गर्ल. तो यहाँ पे हम गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं. सो मोना के लिए हम शी यूज करेंगे. ओके. ही मैंने बताया था कि ही इज यूज फॉर एनी मेल नेमिंग वर्ड्स and she is used for female naming words. So here we are talking about Mona. Mona is a girl. तो मोना इज रोहन्स बेबी सिस्टर. मोना जो है वो रोहन की छोटी सिस्टर है. इसके पहले वाले पैराग्राफ में हमने रोहन के बारे में बात किया था कि हु इज रोहन. रोहन इज नितिन्स फ्रेंड. रोहन जो है वो नितिन का फ्रेंड है. ठीक है. अभी हम मोना के बारे में बात कर रहे हैं. मोना इज रोहन्स बेबी सिस्टर. तो शी को इंसर्कल करेंगे. शी हैज शॉर्ट ब्लैक हेयर. शी और ही हैज अ टॉय कैट. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट मोना. ठीक है ना. मोना के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो शी हैज शॉर्ट ब्लैक हेयर. शी हैज अ टॉय कैट. उसके पास एक टॉय कैट है. क्या है? टॉय कैट. खेलने वाली एक कैट है. ओके. यू कैन सी द कैट इन हर हैंड्स. शी इज कैरिंग दिस कैट. टॉय कैट जो उसकी है. ठीक है. स्टफ टॉय जैसे जो होते हैं. वी और इट इज ग्रे इन कलर. नाउ हियर यहाँ पे जो है, यहाँ पे वी एंड इट, इसको हमने यूज किया है फॉर द कैट. ठीक है. यहाँ पे वी या इट किसके लिए यूज हुआ है? इट इज यूज फॉर द कैट. तो कैट के लिए मैंने क्या बताया? फॉर एनीथिंग. यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल कैट. इट इज अ टॉय कैट. हम एक टॉय कैट के बारे में बात कर रहे हैं. तो क्या होगा यहाँ पे? उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वी और इट. मैंने बताया था कि फॉर एवरीथिंग other than male and female naming words, for everything else we use it. So it is gray in color. यहाँ पे it हम यूज कर रहे हैं for the toy cat. Here it is used for toy cat. Okay. So Mona is Rohan's baby sister. She has short black hair. She has a toy cat. It is gray in color. Okay. Now write this. इसको आप अपनी बुक में सर्कल कर लो. Then one more paragraph is there. इसको आप अपनी बुक में सर्कल करो. फिर मैं लास्ट पैराग्राफ लिखती हूँ. You just have to encircle it, so not take a long time. सबने सर्कल कर लिया. Mona is Rohan's baby sister. She has short black hair. उसके छोटे ब्लैक कलर के बाल हैं. शी हैज अ टॉय कैट. उसके पास क्या है? एक टॉय कैट है. एंड इट इज ग्रे इन कलर. वो ग्रे कलर की है. ओके. आई होप एवरीवन हैज डन इट. सबका हो गया है ये. ठीक है ना. तो अभी इसको मैं इरेज कर रही हूँ. ओके चिल्ड्रन. इसको मैं इरेज कर रही हूँ अभी. फाइन. एंड आफ्टर दिस आई विल राइट द थर्ड पैराग्राफ. After this, I will write the third paragraph. Okay. Now, third paragraph, children, is
Rohan, 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 and Mona, Mona live in Goa, Goa, Goa. They oblique we have a house near the sea. It oblique they have come to meet Nitin on a holiday, holiday. They oblique we are all GOOD good, FRIENDS friends. Now, okay, now the paragraph is Rohan and Mona live in Goa. They oblique we have a house near the sea. It oblique they have come to meet Nitin on a holiday. It is they. They oblique we are all good friends now. Children, in the first paragraph, we talked about he and his. ठीक है, पहले पैराग्राफ में हमने he and his के बारे में बात किया. Then she. ठीक है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैंने बताया था. तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात किया, he, his. सेकेंड पैराग्राफ में हमने थर्ड पर्सन के बारे में बात किया, she, फीमेल नेमिंग वर्ड के लिए. ठीक है, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी इसमें हम प्लूरल फॉर्म देखेंगे. फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों पैराग्राफ में सिंगुलर फॉर्म देखा हमने. ही इज सिंगुलर फॉर्म एंड शी इज ऑल्सो सिंगुलर फॉर्म. ही, शी, इट, हिज, हर, ऑल दीज आर सिंगुलर फॉर्म्स. नाउ इन दिस पैराग्राफ वी विल सी द प्लूरल फॉर्म्स, कि प्लूरल फॉर्म्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं. ओके, नाउ रोहन एंड मोना लिव इन गोवा. ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? रोहन एंड मोना. फर्स्ट पैराग्राफ में हमने बोला कि रोहन का फ्रेंड कौन है? नितिन है. ठीक है, फिर हु इज मोना? मोना इज रोहन्स बेबी सिस्टर. नाउ वेयर डू दे लिव? वो रहते कहाँ हैं? रोहन एंड मोना लिव इन गोवा. गोवा वी ऑल नो इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस. इट्स अ वंडरफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस, जो भी आप बोलो. एंड इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ सी बीचेस, वंडरफुल बीचेस. लोग वहाँ हॉलीडेज अक्सर स्पेंड करने जाते हैं अपने. एंड गोवा के आसपास भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं. फोर्ट है, वाटरफॉल्स हैं. सो गोवा लोग नॉर्मली, जो लोग वहाँ रहते हैं वो तो रहते ही हैं, बट फ्रॉम अदर प्लेसेस पीपल गो टू गोवा फॉर हॉलीडे. हॉलीडेज में जाते हैं, गोवा जाते हैं. ओके, नाउ रोहन एंड मोना लिव इन गोवा. They oblique we have a house near the sea. Now here we are talking about Rohan and Mona. ठीक है, रोहन एंड मोना के लिए बात कर रहे हैं हम. So who are Rohan and Mona? They are third person. The options are they and we. तो मैंने क्या बताया था कि we यूज करते हैं हम for first person. When we are talking in first person. अगर हम मैं बात कर रही हूँ और मेरे साथ अगर कोई और भी है, अगर मैं बात कर रही हूँ then I will say I. But if there is someone else with me, then I will say we. मेरे साथ अगर कोई और भी है तो मैं क्या बोलूँगी? तब मैं we बोलूँगी. ठीक है ना? तो we is used for first person plural. सेकेंड पर्सन प्लूरल में मैंने कहा था you यूज होता है. सिंगुलर में भी you and प्लूरल में भी you. सेकेंड पर्सन में. एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर में तो जैसे जब हम नाम लेते हैं, ठीक है, ही, शी, इट, दैट इज यूज्ड इन थर्ड पर्सन सिंगुलर. और व्हेन वी टेक द नेम, जैसे रोहन, ही इज, मोना, शी, टॉय कैट,
it is. अभी यहाँ पे here we are talking about रोहन and मोना. दैट मीन्स दे आर प्लूरल, एक से ज़्यादा है तो क्या हो गए, प्लूरल फॉर्म हुआ. तो प्लूरल के लिए हम थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए दे यूज़ करते हैं. वेन वी टॉक अबाउट समवन हु इज़ नॉट विथ अस, जब हम किसी थर्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ कि हम आपस में जब दो लोग बात कर रहे हैं तो जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है. थर्ड पर्सन मतलब जो वहाँ पे नहीं है. तो इफ समवन इज नॉट देयर तो वो थर्ड पर्सन हुआ, तो उसके लिए हम प्लूरल में we use they. So Rohan and Mona live in Goa. They have a house near the sea. They have a house near the sea. मतलब उनका जो घर है वो सी के पास है. It or they have come to meet Nitin on a holiday. It is used for anything. It is not used for any person. इट वर्ड जो है वो किसी पर्सन के लिए तो यूज़ नहीं होता है. इट इज़ यूज फॉर समथिंग, जिसमें लाइफ नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग के लिए इट यूज़ होता है. सो दे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोहन एंड मोना की, तो क्या होगा, दे हैव कम टू मीट नितिन ऑन अ हॉलीडे. ठीक है, वो अब नितिन से हॉलीडे पे मिलने आए हैं. दे और वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स नाउ. क्या होगा यहाँ पे बताओ, दे होगा कि वी होगा. दे आर ऑल गुड फ्रेंड्स नाउ. ओके, बिकॉज हियर यहाँ पे हम रोहन, मोना और नितिन की बात कर रहे हैं. सो दे आर ऑल गुड फ्रेंड्स नाउ. यहाँ पे वी, क्योंकि हम जो बोल रहा है वो तो कहीं खुद इन्वॉल्व नहीं है ना. दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट, पहले रोहन एंड नितिन की बात किया, ठीक है, फिर मोना के बारे में बात किया. अभी रोहन एंड मोना का घर है गोवा में घर है, वो नितिन से मिलने आए हैं हॉलीडे पे. तो दे आर ऑल गुड फ्रेंड्स नाउ. यहाँ पे वी नहीं आएगा बिकॉज द पर्सन हु इज टॉकिंग वो कहीं पे भी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है. तो दे आर ऑल गुड फ्रेंड्स नाउ. ओके, सो आई होप यूज ऑफ ही, शी, इट, वी, दे, आई ये समझ में आ गया. दिस इज क्लियर टू यू. ये थोड़ा आपको याद रखना होगा जब हम ग्रामर पढ़ेंगे, प्रोनाउंस पढ़ेंगे ग्रामर में, देन आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन मच डिटेल, और ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वर्ड बिल्डिंग. एज आई हैव टोल्ड यू, आज आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट दिस टुडे. आज मैं ये स्टार्ट नहीं करूँगी, ठीक है. स्टार्ट इसको मैं नेक्स्ट डे करूँगी. आई विल जस्ट टेल यू द एम ऑफ वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज. वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइजेस भी हर लेसन में होती हैं. द एम इज टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइजेस का मेन एम क्या है, आपकी वोकैबुलरी को और इम्प्रूव करना. ठीक है, इम्प्रूव करना मतलब उसको और अच्छा करना. और वर्ड बिल्डिंग जैसे, क्योंकि आप जितना वर्ड अगर आपको फ्रेम करना है, इफ़ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट न्यू वर्ड्स, इफ़ यू हैव टू थिंक ऑफ न्यू वर्ड्स, तो और भी वर्ड्स आपको ऑब्वियसली याद आएंगे, आप सोचोगे. ओके, सो द पर्पस ऑफ वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज इज टू improve your vocabulary. Okay, so in this lesson, in word building exercise, we will be doing matching of words having similar meanings. जैसे big and large. We have a big skating rink and a large swimming pool. Both the words mean the same. दोनों words का मतलब क्या है, सेम है. ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग सेम होती है. सो हियर वी आर गोइंग टू, in this exercise we will be matching the words with similar meaning. Of course right now I'm not going to do it, abhi nahi karenge isko, we will start in the next class. So I hope children this pronoun जो आज मैंने explain किया है, pronoun ये सबको clear है, और इसमें किसी को कोई doubt अगर होता है, if you have any doubt, so you can always clarify it in the online class. Okay children, so that is all for the day. In case of any doubt children, I am again repeating, feel free to ask me in the online class. ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी होती हैं उनका मेन पर्पस यही है कि आप वीडियोस देखो, एंड जो भी डाउट आपको होता है यू क्लैरिफाई इट इन द ऑनलाइन क्लास द नेक्स्ट डे. ओके, सो आई होप दैट यू ऑल आर वॉचिंग द वीडियोज रेगुलरली.
Okay, children. So with this, I will end my class today. Thank you and have a good day ahead.